ছোৱালী পৰ অধিকাৰ জুৰিল আজি সকলো জাগিবৰ হল কিয় এইবাৰ লমেই যে আমি আমি যুঁজি যাওঁ আমি জিকি যাওঁ হাতে হাত ধৰি আমি আমি পাৰে এতিয়া মই আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ জয়প্ৰকাশ দাসক অনুৰোধ কৰিলোঁ। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমি ধুবুৰী জিলালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি সম্বৰ্ধনা জনাব খুজিছোঁ আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ নেতা তথা দেশৰ জনতাৰ হৃদয় স্পন্দন সকলোতকৈ দেশৰ সৎ ব্যক্তি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক এখনি শৰাই গামোচা চেলেং আৰু জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাব খুজিছোঁ। সম্বৰ্ধনা জনাব ACLP লিডাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, DCC প্ৰেচিডেণ্ট আবেদুজ্জামান, MLA ৱাজিদ আলী চৌধুৰী, MLA আব্দুল সুবহান আলী চৰকাৰ, MLA জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ ডাঙৰীয়া, অমিত বাদশাহ ডাঙৰীয়া, NSY প্ৰেচিডেণ্ট নুৰুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া, ইট কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট জুবাইদুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া, বেবী বেগম আৰু নুৰ হক ডাঙৰীয়া সকলোকে আমাৰ মৰমৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जोरो 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 राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। এতিয়া পৰৱৰ্তী সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া সম্বৰ্ধনা জনাব AIC জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া সম্বৰ্ধনা জনাব ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি চাইকুল ইছলাম, ৰাহুল আমিন কুদ্দুছ ডাঙৰীয়া, লক্ষীকান্ত নাথ ডাঙৰীয়া, মাজি আলী ডাঙৰীয়া, চেপালী মাৰাক ডাঙৰীয়া, শেখুদ্দিন মাৰাক ডাঙৰীয়া, চৰা চাংমা ডাঙৰীয়াই আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু AIC জেনেৰেল জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। জয় 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 ৰাহুল গান্ধী। পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী চলাই নিবলৈ মই জিলা সভাপতি আবেদুজ্জামানক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছে। এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ যিহেতু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধানত হৈছে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাননীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বাকী কামখিনি চলাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট সকলোকে আৰু আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাইজক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ উপসভাপতি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক আদৰণি ভাষণ দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, CLP লিডাৰ, সংসদসকল, বিধায়কসকল, জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, ধুবুৰী জিলাৰ যুৱ কংগ্ৰেছ, NSY মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দলৰ সহকৰ্মী বন্ধুসকল, মঞ্চত উপবিষ্ট নেতাসকল, ইয়াত উপস্থিত থকা বন্ধুসকল, প্ৰেছৰ লোকসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আপোনালোকে আমাৰ কথা শুনিবলৈ অহা নাই, আপোনালোকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ কথা শুনিবলৈ আহিছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আজি একো নকওঁ, আপোনালোকে সকলো শুনিছে। আপোনালোকে আজি ইয়াত ওলাই আহিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
কিমান অসুবিধা কৰিছিল সেই কথাখিনি আপোনালোকে জানে। তৎসত্ত্বেও আপোনালোকে আজি ওলাই আহিছে, মুকলিভাৱে উশাহ ল'বলৈ বিচাৰিছে। আমি কথা দিছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত সন্মিলিতভাৱে কংগ্ৰেছ দলে আপোনালোকক নেতৃত্ব দিম আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখন আমি পতন কৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব লাগিব। আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে বেয়া পাইছে। কোন শ্ৰেণীৰ ৰাইজে বেয়া পাইছে? আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বেয়া পাইছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ আগতে প্ৰায় 20-25 জন MLA জিকিব পাৰিছিল। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই লোকসকলক এটা সমষ্টিলৈ ঠেলি দি মাত্ৰ এটা বা দুটা সমষ্টিত কনচেনট্ৰেট কৰাইছে। যিখন অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী আহোম সম্প্ৰদায় হয়, স্পীকাৰ আহোম সম্প্ৰদায় হয়, এই আহোম সম্প্ৰদায় আজি আপোনাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক সুৰক্ষিত বুলি ভাবা নাই। মৰাণ মতক লোকসকলে ভাবিছে যে আমি আজি সুৰক্ষিত নহয়, আমাৰ যিকেইটা চিট আছিল সেইকেইটা নাইকিয়া হৈ আছে। আজি চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে উজনিত এটা চিট ভাবিছিল যে আমি ভালকৈ পাওঁ, সেই চিটটো আজি নাইকিয়া হৈ গ'ল। নামনিত আজি ৰাজবংশী লোকসকলে ভাবিছিল যে আমাৰ এটা চিট আছে, সেই চিটটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি আজি আপোনাৰ অসুবিধাত পেলাইছে। 6 জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলেও আজি সুৰক্ষিত নহয় বুলি ভাবিছে। এই কথাখিনি আমাতকৈ বেছি ইণ্টেলিজেন্সৰ যোগেদি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাইছে। সেইকাৰণেই তেওঁ সকলোতকৈ বেছি এতিয়া বন্দুক হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া। এতিয়া একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা দিব পৰা লোক হৈছে আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া। সেইকাৰণে এই ধুবুৰীত আজি আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ৰাইজ, যদি আপোনালোকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰক উৎখাত কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিব নালাগে। আপোনালোকে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰাজনৈতিক উৎখাত কৰক। ধুবুৰীৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অতৰা দায়িত্ব আমি লৈছোঁ। আকৌ আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰত্যাখ্যান কৰক ৰাজনৈতিকভাৱে। অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উৎখাত কৰাৰ দায়িত্ব আমি লৈছোঁ আপোনালোকৰ সহযোগত। একমাত্ৰ আপোনালোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ আজমল ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰক। राहुल जी, आज असम में ऐसा हालत है, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा अभी जानते हैं कि अपर असम में बीजेपी का वोट नहीं मिलेगा, मिडिल असम में नहीं मिलेगा। इसीलिए वो इंटेलिजेंस के जरिए जानते हैं कि अभी लास्ट टाइम ये जो लोग बीजेपी का सपोर्ट करता था वो लोग अभी बीजेपी का साथ नहीं है। इसीलिए सिर्फ बदरुद्दीन आजमल जी का पॉलिटिकल हेल्प लेने के लिए अभी आप ये धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन के जरिए वो सुरक्षित करने के लिए कोशिश किया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बदरुद्दीन आजमल और हिमंत ज्योति जे भाई ककाय এই কথা আমি নকওঁ, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া বুলি কওঁ। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্বই বধু ভাই বুলি কয়। এই কথাখিনি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভায়েক ককায়েক, সেই কথা মোৰ পৰা শুনিব নালাগে। আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কণ্ঠত শুনক। पुराने मित्र मिले मुझे 2 दिन पहले, बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने कहा हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो सीएम बनना चाहते हैं, कांग्रेस में बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, बीजेपी में गए। एंड देन ही सेड कि हमारे वोटों से ही वो सीएम बनेंगे, हमारे सपोर्ट से ही सीएम बनेंगे, हम हेमंत बिश्व शर्मा को सीएम बनाएंगे। देखिए, ये बदरुद्दीन अजमल जी का बहुत दिन से तमन्ना है कि मुझको सीएम देखना चाहते हैं। अच्छा, एट ए पर्सनल लेवल। ओके। वो आज 10-12 साल से ही वो बोलता है ये उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो आज से नहीं, कम से कम 2008 से जब मैं कांग्रेस में था और जब मैं बीजेपी में हूँ, आज से 4 महीना पहले भी वो मुझको फोन में बताया। अच्छा, कि फोन भाई किया उन्होंने आपको? मेरा सर अच्छा ताल्लुक है, अभी उनका कोविड बीमार हुआ था, मैं उनको 10 दफा फोन किया। जी। तो ऐसा कोई पर्सनल थोड़ी दुश्मनी है। उन्हीं अजमल ने ये भी कहा कि
आप पूछिएगा मिले तो उनके पास कितना पैसा है, कहाँ से आया, हमको तो पता नहीं। वो कौन लड़ रहे और बोले इंशाल्लाह ऐसा ना हो कि हमारे भी कुछ कैंडिडेट उनके नाम पे लड़ रहे हैं। वो तो है, सत्य है। हाँ, आजमल को भी मैं बताऊं कि इसको सपोर्ट करो, वो करेगा। हर राज्यसभा चुनाव में हाँ, मैं 1-2 उनका तो लोगों को वोट दिलवा देता हूँ, बीजेपी वाले को। बीजेपी को दिलवा देता हूँ, वो तो चलता है मेरा। मैं फोन करने से कोई मुझको ना नहीं बोलता है, और क्यों ना नहीं बोलता है वो लोग जाने। मैंने सर ये कहीं नहीं सुना किसी पॉलिटिकल कैंपेन में कि कोई नेता कह रहा हो कि मुझे नहीं पता मेरी पार्टी के कितने लोग उसकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मैं अगर फोन करके उनको बोल देता था जी कि बटूर भाई ये 2 साल मेरा लोग है, आप टिकट दे दीजिए, वो दे देता था। ধন্যবাদ। শুনিলে বধু ভাই বুলি কৈছে। এই বধু ভাই আৰু হিমন্ত জ্যোতিক আমি পৰাস্ত কৰিম ৰাহুলজী। আপুনি ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত সন্মিলিতভাৱে সকলোৰে লগত মিলি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে মিলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজনৈতিকভাৱে আমি আত্মা হৰুৱাম, সেই কথাটো আজি আমি সংকল্প লৈছো। এই কথাৰে মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছো। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ। এতিয়া মই আমাৰ অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সৌজন্যত ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আজি হোৱা এই ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ বিশাল সভাত উপস্থিত আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ উপদলপতি বিধায়িনী আৰু বিধায়কসকল, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সাংসদসকল আৰু আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু আজিৰ সভাত উপস্থিত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি, জিলা পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মণ্ডল বুথ ব্লকৰ আৰু NSY যুৱক ইউথ কংগ্ৰেছৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ কৰ্মীসকল, আজিৰ এই সভাত আপোনালোক সকলোৱে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীজীৰ বক্তব্য শুনিবলৈ। মই সেই গতিকে বিশেষ কথা নকওঁ, মাত্ৰ আমি সকলোৱে ন্যায় যোদ্ধা হ'বলৈ আপোনালোক এনেকৈ আগবাঢ়ি অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই ন্যায় যোদ্ধা হোৱাটো আমাৰ বাবে প্ৰয়োজন। এইকাৰণেই প্ৰয়োজন যে আমাৰ দেশত বৰ্তমান যি শাসন চলি আছে, এই শাসন আমি হিটলাৰৰ শাসন আৰু ইটালীৰ মুছলিনীৰ শাসনৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে যেনেকৈ ফেচিবাদী শাসন চলাইছিল, তেওঁলোকে যেনেকৈ যেতিয়া ইহুদীসকলক জাৰ্মানীৰ পৰা তেওঁলোকে জাৰ্মান নহয় বুলি কৈ জাৰ্মানীৰ অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয়ৰ কাৰণ একমাত্ৰ ইহুদীসকল বুলি কৈছিল, ঠিক তেনেকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও অসমৰ সকলো দুৰ্দশাৰ কাৰণ অসমত বসবাস কৰা মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল বুলি কয়। তেখেতে যিকোনো ধৰণৰ আজি বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি হ'লেও মুছলমানসকলৰ কথা কয়, কিবা খাদ্য বেয়া হ'লেও মুছলমানসকলৰ কথা কয়, আৰু এনেকৈ তেখেতে এটা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প আমাৰ ৰাজ্যখনত বিয়পাবলৈ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু যিটো আমাৰ গুৰু মহাপুৰুষ আমাৰ ধৰ্মগুৰু আজান ফকীৰৰ ধৰ্মৰ পৰিপন্থী আমি সকলোৱে মিলা মিছা কৰি অসমত বসবাস কৰোঁ। আমাৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা অসম সাহিত্য সভাপতি পদ্মনাথ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ পৰা আমি ল'ব লাগিব। আমি RSSৰ পৰা অসমীয়াৰ সংজ্ঞা ল'ব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ অসমখন ধ্বংস হ'ব। সেই গতিকে আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত আমাৰ দেশৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি যি সামাজিক ন্যায়, আমাৰ যি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিত আছে, আমাৰ মহিলাসকলক আগুৱাই নিব লাগিব, যুৱকসকলক, সমাজৰ যিসকল পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তেখেতসকলক আগুৱাই নিব লাগিব, লঘুসকলক আগুৱাই নিব লাগিব। আৰু এই গোটেইবিলাক কাম আমি কৰিম আমাৰ এই ন্যায় যাত্ৰাৰ যোগেদি। আৰু ন্যায় যাত্ৰাৰ যোগেদি আমি দেশৰ যি অন্যায় বৰ্তমান প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, এই অন্যায় আমি নাইকিয়া কৰিম। সেই গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত আপোনালোকে একত্ৰিত হওক, এই আহ্বান মই জনালোঁ। আৰু আজমল ডাঙৰীয়াৰ ভাতৃয়ে যি সময়ত অসমত সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত উৎপীড়ন হয়, সেয়া লাগে গৰুখুটিয়ে হওক বা গোৱালপাৰা ৰেল লাইনৰ কাষত গুলীচালনাই হওক বা গৰুখুটি যি চাহ বাগানৰ মহিলাৰ ওপৰত ধৰ্ষণ হয়,
তেতিয়া কিন্তু তাৰ পিছতো তেখেতে কয় যে অসমৰ সিৰাজুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই কয় যে অসমৰ বেষ্ট CM হৈছে, বেষ্ট বাজেট দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিৰোধীত থাকি তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰশংসা কৰে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ সাংসদক জবাবদিহি কৰিব লাগিব। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। এইখিনিকে কৈ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আই অসম। এতিয়া মই অকণমান ক'ম, তাৰপাছত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে যাৰ কাৰণে ৰৈ আছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া। ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ আজিৰে সামৰণি বিশাল মুকলি সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ নেতা, ভাৰতবৰ্ষৰ নিষ্পেষিত শোষিত বঞ্চিত মানুহৰ এক আপোচবিহীন যোদ্ধা শ্ৰীযুত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়া, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, সুপ্ৰিয়া সিন্তে ডাঙৰীয়ানী, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া, পৃথিৱীৰাজ সাথে ডাঙৰীয়া, বিকাশ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ ডাঙৰীয়া, ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, আবু সামাদ সিকদাৰ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা আমাৰ নেতৃবৃন্দ, পৰম পূজনীয় ৰাইজ, সাংবাদিক বন্ধুসকল, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সুদীৰ্ঘ ইতিহাসত এয়া আমাৰ পৰম সৌভাগ্য যে আমাৰ এজন নেতা, যিজন নেতাক লৈ পেলাই দেশৰ কোটি কোটি যুৱ প্ৰজন্মই নিজৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখে, সেইজন নেতা অসমৰ পথাৰে পথাৰে, অসমৰ গাঁৱে ভূঞে, চহৰে নগৰে আজিলৈকে 7টা দিন অতিক্ৰম কৰিছে। যোৰহাটৰ পথাৰত শুইছিল ৰাহুল গান্ধী, ধেমাজিৰ পথাৰত শুইছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে, বৰপেটাৰ পথাৰত শুইছিল ৰাহুল গান্ধী, আৰু আজি প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ জন্মস্থান গৌৰীপুৰৰ পথাৰত ৰাতি কটাব ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই। 6 দিন 6 ৰাতি 8 দিন শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ধেমাজি, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, নগাঁও, মৰিগাঁও, গুৱাহাটী, কামৰূপ, নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও আৰু আজি ধুবুৰীৰ এই 15খন জিলাৰ ৰাইজে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক যি অভূতপূৰ্ব শিলডাল ভাঙি সঁহাৰি দিলে, তাৰ বাবে মই সকলো ৰাইজক কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছো। সদেহ ৰাইজ, মই আপোনালোকক কৈছিলো যে আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তত ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থন আছে বুলি। আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ক'ব যে আজমলৰ লগত আমি কিয় আজমলৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছো। আজমলৰ যিটো তলা আছে চিম্বল, সেই চিম্বলটো 3টা চাবি, সেই তলাটোৰ 3টা চাবি, এটা চাবি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকে, এটা চাবি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকে, আৰু এটা চাবি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত থাকে। এই তলাই আমাৰ ধুবুৰীৰ অসমৰ যি সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি, যি ভাতৃত্ববোধ, যি আমাৰ একতা, তাক মষিমূৰ কৰি অসমত সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ বীজ সিঁচিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলো একেলগে থিয় হ'ব লাগিব। মই বহুত দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাবিছে
যে মই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি অসমৰ মানুহৰ ভোট ল'ম, কিন্তু আমাৰ অসমৰ ৰাইজে এই কথা বুজি পাব লাগিব যে হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ কৰ্ম সংস্কৃতি নাইকিয়া হৈছে। আমি কাম নকৰা হৈছো, আমি কামৰ প্ৰতি স্পৃহা নাইকিয়া হৈছে। যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে, যুৱ প্ৰজন্ম আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে আজি অসমত কোনো সুবিধা নাইকিয়া হৈছে। এই ধৰণৰ যি প্ৰতাৰণা, প্ৰলোভন, প্ৰবঞ্চনা ৰাজনীতিৰ পৰা অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক মুক্তি দিবৰ কাৰণে এই ভাৰত জোৰা ন্যায় যাত্ৰাৰ মাধ্যমেৰে আমি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত যি বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, সেই বাৰ্তা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যাতে অতি দীঘলীয়া কৰি দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছো। বন্দে মাতৰম, জয় অসম। আৰু এতিয়া মই আমাৰ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। हमारे देश की और युवाओं की धड़कन सम्मानीय श्री राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान है श्री जयराम रमेश जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा जी, सीएलपी लीडर साइकिया साहब, रॉकी बुलजी हुसैन साहब, माननीय हमारे तीनों सांसद विराजमान हैं, एमएलए साहिबान विराजमान हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विराजमान हैं, जिला परिषद, मंडल, पंचायत के सभी हमारे साथीगण, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस के हमारे सभी साथीगण विराजमान, मेरे बुजुर्गों, माता, भाइयों और बहनों, मैं आपका सिर्फ 2 मिनट समय लूंगा और आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपने जो मान और प्रेम और सम्मान दिया है, मुझे याद है कि आपके बीच में हम आए थे और यहां से धुबरी से लेकर सदिया तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी और उस यात्रा को आपने प्रेम दिया, मान दिया और सम्मान दिया था। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आसाम की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई शिव सागर से और आज आपके बीच में धुबरी में हाजिर हुए हैं। इन हजारों किलोमीटर पर आसाम के लोगों ने जो समर्थन दिया है, जो प्रेम दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसी यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह का व्यवधान पैदा किया, वो घबरा गया है। जो ये यात्रा चली है, वो यात्रा के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, उसको बिल्कुल घबरा गया है। वो जानता नहीं है क्या हो गया ये असम के अंदर। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो प्रेम दिया है उसकी वजह से। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा, हम अभी अपर असम से आ रहे थे, शिव सागर से नीचे होते हुए आए और वहां चाय बागानों के सामने हम साथ साथ जा रहे थे और आपको निवेदन करना चाहूंगा, एक भविष्यवाणी भी करना चाहूंगा। अगर ये मुख्यमंत्री रहा और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो आसाम के अंदर जो चाय का एक नाम है, चाहे विदेश में, अमेरिका में चले जाइए, चाहे देश और दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आसाम की चाय का नाम रहता है। आसाम का नाम पूरे देश और दुनिया के अंदर है। ये 5 साल और मुख्यमंत्री रह गया तो आसाम की चाय बागान गायब कर देगा। इस तरह का भू माफिया है, जमीनों का माफिया है। इसने पूरा गुवाहाटी और उसके आसपास जमीनों को रिवर फ्रंट के नाम पर हर जमीनों के ऊपर कब्जा करने का काम कर रहा है। जिस तरह का गुंडा टैक्स वो ले रहा है, हर चीज के ऊपर टैक्स है। ये जो पेन देख रहे हो साथियों, ये जो पेन मेरे हाथ में है, ये भी कहीं दिल्ली बंबई से बन के आता है तो इसके ऊपर भी हेमंत बिस्वा शर्मा का टैक्स लगता है। इस तरह का मुख्यमंत्री है आपका। और दूसरी आखिरी बात मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से जो माननीय सांसद हैं वो माननीय अजमल जी हैं। उनके बारे में अभी रॉकी भाई ने टेप भी सुना दिया।
आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उनको जिताया, आपने उनको वोट दिया, आपने उनको समर्थन दिया और आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को बेच के आ गए हैं। आपका वोट की जो कीमत है वो अगर का पेड़ लेकर चले गए हैं। आपको धोखा दिया है, आपका सर नीचे करा है उस अजमल जी ने। मैं तो ये आपसे कहना चाहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बना रहेगा जब तक अजमल रहेगा। तो इसलिए साथियों, मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, आप सब लोग हाथ खड़ा करके आज बता दीजिए कि अजमल यहां इसके लिए कोई जगह नहीं है, धोखाबाज के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय होम। जितेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी को अपना भाषण रखने के लिए निवेदन करता हूं। जितेंद्र सिंह जी, भूपेन बोरा जी, साइकिया जी, जयराम रमेश जी, रॉकीबुल हुसैन जी, गौरव गोगोई जी, प्रद्युत बोरदोलोई जी, अब्दुल खालिक जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, भाइयों और बहनों, असम के प्यारे युवा, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे सुनाई नहीं दिया। कैसे हैं आप? पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले। उस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। जो बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है, उसको मिटाने का था। 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों से मिले, हर रोज 7-8 घंटे हम आम जनता, आम नागरिक की बात सुनते थे। शाम को 15 मिनट हम अपना भाषण रखते थे। और जब हम कश्मीर पहुंचे, यात्रा ने पूरे देश में एक मैसेज फैला दिया कि एक तरफ नफरत और हिंसा और दूसरी तरफ भाईचारा और मोहब्बत। यात्रा में से, यात्रा के अंदर से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो नारा पूरे देश में गूंजा। लोगों ने हमें कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर चल लिए, मगर बीजेपी ने तो मणिपुर में, अरुणाचल में, नागालैंड में, असम में, ओडिशा में नफरत फैला रखी है। उसका क्या होगा? इसीलिए इस साल हम मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं।
और जो हमने पिछली यात्रा में कहा वही हम इस यात्रा में कह रहे हैं। ये भाईचारे का देश है, ये नफरत का देश नहीं है, ये अहिंसा का देश है, हिंसा का देश नहीं है। और आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मणिपुर में, अरुणाचल, नागालैंड, असम में लाखों लोग सड़कों पे आए और लाखों लोगों ने यह कहा कि हम नफरत के खिलाफ हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। हम सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमने इस बार न्याय शब्द जोड़ दिया। हम कहना चाहते हैं कि नफरत और हिंसा तभी होती है जब देश में अन्याय होता है। जब देश में न्याय होता है, परिवार में न्याय होता है, शहर में न्याय होता है, तो नफरत और हिंसा वहां नहीं दिखाई देती है। अब मैं असम की बात करना चाहता हूं। असम में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, यहां पे सब लोग जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। आप देखिए, आप सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। कोयला आपके चीफ मिनिस्टर का, उस कोयले में से आपके चीफ मिनिस्टर के जेब में पैसा जा रहा है। चाय पीते हो, चाय के गार्डन आपके चीफ मिनिस्टर के। अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, टेलीविजन और अखबार आपके चीफ मिनिस्टर के। सड़कों पे चलते हो, पुल पे ब्रह्मपुत्र के को पार करते हो, उसमें से पैसे आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है। शाम को पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। और अगर कभी आपको काजीरंगा में राइनो जाके देखना हो तो पता लगेगा कि वहां भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजॉर्ट है। राइनो देखना हो तब भी उनके रिजॉर्ट में जाके राइनो देखो। तो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका यहां है। वो करता क्या है? वो असम में 24 घंटा नफरत फैलाता है। कभी कहेगा कि पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये आपके चीफ मिनिस्टर
ने ट्विटर पर लिखा। ओबीसी का खुलेआम सबके सामने अपमान किया। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे, और जब असम की जनता का ध्यान भटकेगा तो आपका पूरा का पूरा धन, चाहे वो चाय, सड़क, कोयला, टूरिज्म, जो आपका पैसा है पूरा का पूरा सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपसे छीन लेता है। हमारी यात्रा को पिछले 5-6 दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों से रुकवाएंगे, कभी अपने बीजेपी के 2-3 कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े कर देंगे, वो 2-3 नारे लगाएंगे, कभी कोर्ट केस, यात्रा पे मेरे ऊपर कोर्ट केस लगा देंगे। उनको यह बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। आज सुबह मैं भाषण दे रहा था, मैंने भाषण में वो गमछा दिखाना, ये किसी ने मुझे दिया। मैंने भाषण में बोला, इसके बारे में बोला कि ये असम के संस्कृति का चिन्ह है, और मैंने गमछा बोला। वापस बस में गया तो किसी ने मुझे बोला कि इसको हम असम में गमछा नहीं कहते हैं, इसको हम गमुचा कहते हैं। तो मैंने पूछा ये गमुचा का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने मुझे बताया ग मतलब शरीर और मुचा मतलब साफ करना। गमुचा मतलब इससे हम अपना शरीर साफ कर सकते हैं। और ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, इसमें आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है। तो ये यात्रा जो आ रही है, इसका भी यही लक्ष्य है कि हम जो आपके चीफ और बीजेपी ने असम में गंद फैला रखा है, उस गंद को हम पोंछने आए हैं, मिटाने आए हैं। और कैसे मिटाएंगे? असम के तरीके से, शंकर देव के तरीके से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। उन्होंने हमारी यात्रा पर हिंसा की, नारे लगवाए, हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा को हिंसा से नहीं काटा जा सकता है। हिंसा को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और असम मोहब्बत का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, नफरत का प्रदेश नहीं है। हम चाहते हैं कि असम को असम से चलाया जाए।
कांग्रेस पार्टी के यहां पे चीफ मिनिस्टर हुए हैं, गोगोई जी, सेकिया जी और चीफ मिनिस्टर हुए हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर्स को असम को कैसे चलाना है यह कभी नहीं बताया। हमारे चीफ मिनिस्टर असम को असम से चलाते हैं, गुवाहाटी से चलाते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में है। जिस दिन आपके चीफ मिनिस्टर ने असम की बात की, उस दिन अमित शाह जी आपके चीफ मिनिस्टर को गद्दी से उठा के फेंक देंगे। 1 मिनट लगेगा, क्योंकि कंट्रोल है। इतना अन्याय किया है आपके चीफ मिनिस्टर ने कि 2 मिनट में अगर नागपुर से ऑर्डर आए, दिल्ली से ऑर्डर आए, आपके चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए। तो असम को आज असम नहीं चला रहा है, असम को आज दिल्ली से चलाया जा रहा है। और जो भी दिल्ली और नागपुर चाहते हैं वो असम में होगा। दिल्ली और नागपुर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो असम की संस्कृति है, आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है, वो उसे परे कर देना चाहते हैं। जो नागपुर कहता है, जो दिल्ली कहता है, वो असम में होना चाहिए। यह विचारधारा में फर्क है। हम आपकी भाषा की रक्षा करते हैं, आपकी संस्कृति, आपकी हिस्ट्री, आपके जीने का तरीका, उसका हम रक्षा करते हैं। और वो असम पर आक्रमण कर रहे हैं। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी अकेले नहीं लड़ती है। बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी हैं। एक सिक्के में 2 साइड होते हैं। एक सिक्के में 2 साइड होते हैं। एक साइड नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके चीफ मिनिस्टर, और दूसरा साइड अजमल। जो भी असम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अजमल ऑर्डर लेके 1 मिनट में कर देते हैं। चुनाव में उनकी मदद करते हैं। और जो भी आपके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, अजमल उनके लिए करते हैं, पूरी मदद करते हैं। तो यहां पे कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही है। असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी बी टीम अजमल के खिलाफ लड़ रही है। और हम ना बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना अजमल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यह बात आप अच्छी तरह समझ लो। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने आई है। लोकसभा में, विधानसभा में हम इनको हराएंगे। और बीजेपी को
अगर हराना है तो बीजेपी की बी टीम को भी हराना होगा। यह मैसेज मैं आपको देना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी और पिछले 5-6 दिन आप हमारे साथ चले, आपने अपने विचार रखे, इतना प्यार दिया मुझे, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी मुद्दा हो, दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। कोई भी मेरे लायक काम हो, मेरी यहां जरूरत हो, जब भी जरूरत हो, आप मुझे असम बुलाओ, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, नफरत के पीछे डर होता है। जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, इनके दिल में से जो नफरत निकलती है, उसके पीछे डर छुपा हुआ है। हम नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ते हैं, हम नरेंद्र मोदी के दिल में जो नफरत है और जो डर है, उससे लड़ते हैं। तो हम उनके डर और उनके दिल में जो नफरत है, हम उनसे लड़ तो हम उनके दिल में जो डर है, जो नफरत है, उससे लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? मोहब्बत से लड़ते हैं। मोहब्बत नफरत और डर को काट सकती है। तो हम सबको मिलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। लव यू। এতিয়া মই এটা স্লোগান দিম, পতাকাবিলাক দাঙি ল'ব। মই কম ৰাহুল গান্ধী आप आगे बढ़िए, আপোনালোকে ক'ব আসাম आपका साथ है। राहुल गांधी आप आगे बढ़िए, राहुल गांधी आप आगे बढ़िए। और जोर से कहो, आसाम आपका साथ है। राहुल गांधी आप आगे बढ़िए, राहुल गांधी आप आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद। सभा भंग বুলি ঘোষণা কৰিছো।